accounting fundamentals, accounting for special transactions, bills of exchange we have seen, consignment we have seen, joint venture we have seen, preparation of financial statements of commercial organizations, non-profit organizations, incomplete records. We have seen these three. Chapter 6, accounting standards, we have seen the introduction, AS1, AS12. Okay, we are left with 4 more accounting standards. Let's see simultaneously. Now we are into chapter number 4. Yes. In chapter number 4, we have these subcategories. Admission of a partner. Yes, we have seen this already. We are done with this. Retirement of a partner, death of a partner, joint life policy, dissolution of a partnership firm, amalgamation, conversion of a partnership, sale of a partnership, and the last small concept is LLP, limited liability partnership. We are done with this first part. Okay, now we are going to see the second part, retirement of partner. Okay, page number is 291. Come to 291. हाँ 291. Yeah, retirement of a partner. What is retirement? Yes, he is leaving the partnership firm. Partnership firm. Okay, let's directly see a problem, then you will understand. Come to question number 11. Okay, read the sum. Question number 11, page number 296. Ah, ah. What is the profit sharing ratio? 3:2:1. This is compass, cone, and circle. These are geometrical measurements. Yeah, compass, cone, and circle. Here they are partners. Huh? Next. मतलब 31st December 2021. Indirectly, they are following calendar year, not the financial year. So you can say calendar year 2021. Yes or no? 2021 का बैलेंस शीट दिया था. नेक्स्ट. ओके, कैपिटल अकाउंट्स दिया था. नेक्स्ट क्या था? रिजर्व है कि नहीं? रिजर्व कैपिटल अकाउंट्स 1,20,000 है. रिजर्व उसका नीचे है 30,000. ठीक है. सन्ड्री क्रेडिटर 60,000. तो रिजर्व बैलेंस शीट में देख के एक याद आना चाहिए. क्या था वो? रिजर्व कितना अमाउंट तो 30,000 है. हाँ, वो थोड़ा अलाइनमेंट नीचे आया था, उसको सही कर लो. एरो मार्क दे दो. रिजर्व 30,000 है. 30,000 देख के एक याद आना चाहिए. क्या था? जो एग्जिस्टिंग रिजर्व है पार्टनरशिप फर्म में, जो एडमिशन होने के पहले हम क्या करते हैं? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को शेयर कर लेते हैं, क्योंकि दिस इज द हार्ड अर्न मनी ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स. या सेम इन दिस वे ऑल्सो रिटायरमेंट है. रिटायरमेंट मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, हु इज गोइंग आउट ऑफ द फर्म, he also has the share in this reserve. Yes or no? So this 30,000 we need to share to existing partners in the existing profit sharing ratio. This is the first adjustment you have to identify from the question directly. Yes, sundry creditors. Next, machinery, furniture, sundry debtors. Okay, less provision for bad debts. Stock, cash and bank. Goodwill नहीं है ना? Okay, very good. Next. Who is getting retired? Corn. When? 31st March 2022. That is when we have given the in the question we were given the balance sheet of
कैलेंडर ईयर 2021, 3 महीने के बाद रिटायर हो रहा है, यस और नो? सर रिटायरमेंट और एडमिशन में क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस क्या है? एडमिशन जब होते हैं रिटायरमेंट के समय, लास्ट बैलेंस शीट डेट से डेट ऑफ रिटायरमेंट तक प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट जो भी है उसको भी जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको वो पैसा दे के भेजना पड़ेगा। एडमिशन में कॉन्सेप्ट नहीं है, बाकी सब सेम रहेगा। समझ गया? बेसिक डिफरेंस एडमिशन और रिटायरमेंट में क्या है? बेसिक डिफरेंस एडमिशन और रिटायरमेंट में, एडमिशन में हमने देखा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, है कि नहीं? एडमिशन में हमने देखा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना, यस। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो जो एडमिट होगा, समझ गया, एग्जिस्टिंग पार्टनर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हमने देखा। और गुडविल एडजस्टमेंट्स है, गुडविल का एडजस्टमेंट देना पड़ेगा। और न्यू कैपिटल्स, न्यू कैपिटल इसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहना है, एग्जाम्पल ये सब हमने देखा ऑलरेडी, है कि नहीं? जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, मतलब एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसको पहले बांटना पड़ेगा, ये भी हमने देखा। एग्जाम्पल इस केस में रिजर्व्स है, उसको तो बांटना पड़ेगा, समझ गया? हाँ, एडमिशन में ये सब देखा। अभी रिटायरमेंट में अभी एक और एडिशनल आएगा, वही है कि प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट, एक एडिशनल एडजस्टमेंट है इसके साथ, ये सब के साथ। अंडरस्टूड? बिकॉज सेम implications will apply in case of retirement also, yes or no? हाँ, सो इस 3 महीने का जो प्रॉफिट है, 3 महीने का जो प्रॉफिट है उसको भी कौन को देना पड़ेगा। दिस इज द एडिशनल एडजस्टमेंट इन दिस सम। नेक्स्ट, कौन रिटायर हो गया तो कौन कौन है? कंपास and circle, these are the, I mean they are the two continuing partners, yes. हाँ, next, 3:2, I can say this is new profit sharing ratio, yes. 3:2 is the new profit sharing ratio, very good. Next, balance sheet of 31st March 2022, this is nothing but new balance sheet, I would say new balance sheet after retirement, yes or no? New balance sheet after, because Cone is getting retired, so from the next day onwards only the new partners will continue, so I can say this as new balance sheet, okay. What are the adjustments they are asking us to do? 45,000. Check in the balance sheet, what is the cost of machinery? हाँ, सो 42 है, 45 में वैल्यू करना है, तो मतलब प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट है, कैसे प्रॉफिट है, क्या क्या? हाँ, बुक वैल्यू बोलते हैं उसको। अभी जो बुक वैल्यू कितना था? 42,000 है, इसको अभी लेके जाना है 45,000 पे। 3,000 इज इंक्रीज इन एसेट, एसेट इंक्रीज होने से प्रॉफिट है, समझ गया? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नथिंग बट नॉमिनल अकाउंट, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ 2% रिड्यूस करना है। स्टॉक वैल्यू कितना था देखो, 50,000 है, 2% कितना हो गया? 1,000, तो कम करना है। हाँ, तो कम करना है मतलब एसेट वैल्यू रिड्यूस करना है,
लॉस है प्रॉफिट है, लॉस होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 600 रुपीज टू, टू मतलब 600 पे लेके आना है। अभी जो एग्जिस्टिंग वैल्यू कितना था 1000 है, 600 पे लेके आना है, तो एसेट वैल्यू इज गेटिंग रिड्यूस्ड बाय हाउ मच 400, सो reduction in the asset is profit or loss, loss, so revaluation account debit side. Next 4000 provision for doubtful debts would be, already balance sheet में कितना है provision 3000 है, 4000 मतलब 1000 एडिशनल प्रोविजन लेना पड़ेगा, ठीक है। प्रोविजन इज नथिंग बट सेटिंग असाइड सम प्रॉफिट, so this is an appropriation of profit, appropriation in the sense debit side, so revaluation account में debit side होगा, ठीक है। This is also a provision, this is also a loss indirectly, so revaluation account debit side, ठीक है। क्रेडिट डेबिट है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, बैलेंस करने से प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, profit on revaluation is shared by existing partners in existing profit sharing ratio. This is one adjustment done. Next 24, क्या बोल रहा है गुडविल 24,000 रुपीज है गुडविल, कंपनी का जो भी ओवरऑल गुडविल है 24,000 वैल्यू करना बोल रहा है। नेक्स्ट हाँ, हु इज कौन, कौन इज गोइंग टू रिटायर, मतलब कौन इज अ रिटायरिंग पार्टनर। टोटल गुडविल 24,000 है, कौन का शेयर कितना होगा गुडविल में बोलो 1/6, 1/6 24,000 1/6 कितना होगा, हाँ 4000 होगा। वो 4000 कौन बेयर करेगा, कौन का कितना 1/6 है क्या है, 1/6 नहीं, देखो 2/6 है, 2/6 मतलब कितना होगा 1/3 होगा, मतलब 1/3 मतलब 8000 होगा। 8000 कौन को, कौन कैपिटल में क्रेडिट होना चाहिए, कौन की शेयर ऑफ गुडविल है वो लेके जाएगा, है कि नहीं। तो 8000 क्रेडिट होगा किसका, टू कौन कैपिटल अकाउंट, है कि नहीं, वेरी गुड। डेबिट किसको होगा, हाँ कंपास एंड सर्कल, कंपास कैपिटल अकाउंट डेबिट, सर्कल कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसको 8000 मिलेगा, ये दोनों देना पड़ेगा। सर क्यों देना है, बिकॉज दे आर गेनिंग, नॉट सैक्रिफाइसिंग हियर, they are gaining. Sir, how do you know they are gaining, see here, here this is the partner retiring, right, so the ये दो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, एग्जिस्टिंग शेयर कितना था 3/6, इसका 1/6, इधर देखो 3/5 2/5, समझ गया, 3/6 is always less than 3/5 definitely, yes or no, he is gaining, दैट्स वाई डायरेक्टली क्या है 2/6, ये दोनों को थोड़ा थोड़ा शेयर मिल रहा है, तो इसलिए दिस इज गेनिंग रेशियो हियर। इन केस ऑफ रिटायरमेंट वी कैलकुलेट व्हाट, गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करो जल्दी। फर्स्ट कौन सा है कैपिटल अकाउंट, कॉम्पास, कॉम्पास गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो और गेनिंग शेयर बोल दो, गेनिंग शेयर कितना था पहले 3/6, नाउ 3/5, नीचे 30 कर लो, है कि नहीं, 6/5 is 30, 15 minus 18, हाँ
हाँ 3/5 इधर आएगा, 3/5 माइनस 3/6 होगा, ठीक है, मैं नेगेटिव कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, 3/30 होगा। हाँ नेक्स्ट, कंपास का दूसरा किसका है, सर्कल ना, सर्कल गेनिंग शेयर कितना है, 2/5 माइनस 2/6, 30, 12 माइनस 10 कितना था, अच्छा इसका 1/6 है क्या, 1/6 होने से 5 हो गया इधर, 7/30, ठीक है, तो गेनिंग रेशियो कितना होगा, 3:7 होगा। तो 3:7 कौन का गुडविल शेयर कितना था, 8000, 3:7 में बांटो, कैलकुलेटर निकाल दो, कैलकुलेटर है कि नहीं, कैलकुलेटर लाना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस होगा। क्या क्या, नहीं 8000 देख लो अच्छे से, 3:7 डिवाइडेड बाई 10 है, 3:7 है ना गेनिंग रेशियो, इधर देख, या किसका है, कंपास का कितना होगा, 2400, सर्किल का 5600, ठीक है, दिस इज अ गुडविल एडजस्टमेंट। इधर देखो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, मतलब कैपिटल बैलेंस बढ़ जा रहा है ड्यू टू गुडविल, ये कौन देना पड़ेगा, कंपास ऑन सर्किल, क्यों, दे आर द गेनिंग पार्टनर्स, सो दे नीड टू शेयर द गुडविल and pay it to whom, कौन, this is the goodwill adjustment, understood? Next, yes same we have adjusted in the capital accounts, okay, हाँ, अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट कितना था प्रॉफिट, 18,000 है, तो 18,000 इसको शेयर कितना होगा, 2/6 होगा, कितना है, 6,000, ठीक है, ये एक एडजस्टमेंट है, मेन एडजस्टमेंट जो डिफरेंस है वही है। हाँ नेक्स्ट, हाँ हम्म देख लेना क्या बोल रहे हैं इस एडजस्टमेंट में, कौन पूरा पे करना पड़ेगा, कौन को पेमेंट पूरा करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद कंपास और सर्कल कुछ कैश लेके आना पड़ेगा, ठीक है, क्यों लेके आना पड़ेगा, देयर क्लोजिंग कैपिटल शुड बी इन द रेशियो ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3:2, इधर दिया था, 3:2 में होना चाहिए, इसलिए वो लोग कुछ कैश लेके आना पड़ेगा, ठीक है, हाँ नेक्स्ट, हाँ इसका मतलब क्या था देख लो, बैलेंस शीट में देख लो एक बार, कैश एट बैंक कितना था, 40,000 है, न्यू पार्टनरशिप फर्म जो है, मतलब 31 मार्च 2022 कौन रिटायर होने के बाद डायरेक्टली 1 अप्रैल 2022 में कैश बैलेंस मिनिमम कितना रहना चाहिए, 20,000, समझ गया सर, क्या आपको कैसे पता चल गया, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, पार्टनरशिप फर्म में उतना कैश रखना चाहिए वो लोग बोल रहा है, सो 40,000 है ना सर, 20,000 यूज करने से हो जाएगा क्या, 20,000 रह जाएगा, कौन को कितना पेमेंट जाएगा हमको पता नहीं, अभी फाइंड आउट करना है, समझ गया, तो कौन को कितना जाएगा पैसा, और क्लोजिंग कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए, रेशियो, वो रेशियो चेक करना पड़ेगा हम, और 20,000 बैलेंस रखना चाहिए, हाँ मिनिमम रखना चाहिए, समझ गया, तो ये बैंक अकाउंट में हम बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, हाँ, व्हाट आर दे आस्किंग अस टू डू,
हाँ 31 मार्च 2022 है। ठीक है, फटाफट हम एक एक एंट्री बोल देता हूँ। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, बुक्स में भी देख लेना। ठीक है, अब वो लिखने की जरूरत नहीं, बुक में टिक कर लेना एक एक देख के अच्छा से। ठीक है, फर्स्ट जो एंट्री है, फर्स्ट ने बोला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग दिया है, बैलेंस शीट दे दिया कैलेंडर ईयर का। ठीक है, अभी नेक्स्ट तुरंत बोला है कौन रिटायर हो रहा है, कंपास एंड सर्कल कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। It was agreed that adjustments were to be made. What are the different adjustments? See here, machinery to be revalued at 45,000. बुक में कितना दिया था 42,000, तो 3,000 इंक्रीज होगा। ठीक है, 3,000 इंक्रीज होगा, ऐसा लिख देना, एरो मार्क ऊपर दे दो, क्वेश्चन में 3,000। ठीक है, 3,000 इंक्रीज होगा, समझ गया, क्वेश्चन में दे दो सीधा। तो अभी इसका एंट्री क्या होगा, इसके पहले एक एंट्री है, क्या था, रिजर्व से बैंक में, मतलब बैलेंस शीट में रिजर्व है, रिजर्व कितना था 30,000 है। 30,000 एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटो, 3:2:1 6। हम्म तो एंट्री क्या होगा, पहला एंट्री देखो, रिजर्व क्रेडिट बैलेंस है, उसको जीरो करना पड़ेगा, तो डेबिट करेगा रिजर्व, रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू कंपास कैपिटल अकाउंट, टू कौन कैपिटल, टू सर्किल कैपिटल। क्लियर, नरेशन देखो, बीइंग रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, फर्स्ट एंट्री भी क्लियर ना, वेरी गुड। नेक्स्ट 3,000 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, समझ गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड आएगा। बुक्स में मशीनरी का बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू कितना था 42,000, अभी 45 में लेके जाने के लिए मशीनरी का वैल्यू 3,000 और बढ़ना चाहिए, तो मशीनरी इज ऑलवेज एन एसेट, इट हैज ए डेबिट बैलेंस, सो और बढ़ना है तो मशीनरी फिर डेबिट करो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितना था 3,000। क्लियर विद द सेकंड एंट्री, बीइंग वैल्यूएशन ऑफ मशीनरी इंक्रीज्ड ऑन कौन से रिटायरमेंट। ठीक है, समझ गया। थर्ड देखो, स्टॉक वाज टू बी रिड्यूस्ड बाय हाउ मच, 2% कितना होगा 1,000, समझ गया। बुक में स्टॉक्स का वैल्यू कितना था 50,000, 1,000 रिड्यूस करना है, तो स्टॉक इज एन एसेट हैविंग डेबिट बैलेंस, उसको रिड्यूस करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, टू स्टॉक 1,000 रुपीज। क्लियर, हाँ। नेक्स्ट, फर्नीचर वाज टू बी रिड्यूस टू 600, फर्नीचर का वैल्यू बुक्स में कितना था 1,000, 400 रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करना है तो 2 फर्नीचर करना है, समझ गया। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना था 4,000, बुक्स में ऑलरेडी 3,000 है, तो एडिशनल 1,000 है जो प्रोविजन में डालना है, तो क्रेडिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1,000। ठीक है, नेक्स्ट, ए प्रोविजन ऑफ 300 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सो 300 क्रेडिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब क्रेडिट होगा तो डेबिट किसको जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर विद द थर्ड एंट्री, क्लियर, हाँ। अभी सेकंड एंट्री में क्रेडिट कितना हुआ रिवैल्यूएशन, सेकंड एंट्री में देखो क्रेडिट कितना हुआ रिवैल्यूएशन, हाँ, सेकंड एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना क्रेडिट हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,000। थर्ड एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना हुआ है, हाँ, इधर देखो, दिस इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, एज्यूम दिस इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट 3,000, डेबिट 2,700, बैलेंस क्या होगा, हाँ, बैलेंस इज 300 विच इज कॉल्ड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, यस और नो। सर प्रॉफिट कैसे है, क्रेडिट ज्यादा है तो इसलिए प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन का एंट्री क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, ये प्रॉफिट पार्टनर शेयर करेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंपास कैपिटल, कौन कैपिटल, सर्किल्स कैपिटल, 300 को शेयर कर लेना, 300 किस रेशियो में, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। क्लियर, क्लियर विद दिस एंट्री, एनी डाउट, हाँ क्लियर ना, हाँ। नेक्स्ट, गुडविल का एडजस्टमेंट,
हमने ऑलरेडी इधर एंट्री पास किया, देखो कंपास अकाउंट डेबिट, सर्किल अकाउंट डेबिट टू कोन्स कैपिटल कितना था 2400, 5600, 8000, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या दिया था इसमें, गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट क्या दिया, द प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट वाज एस्टिमेटेड एट कितना था 18000, तो 18000 को बांटना पड़ेगा, ठीक है, 18000 को बांटना पड़ेगा, है कि नहीं। टू फर्स्ट कौन था, कंपास ना, हाँ, टू कंपास कैपिटल, टू कोन्स कैपिटल, टू सर्किल्स कैपिटल। सर डेबिट किसको देगा, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट है सर, ये क्यों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रीजन अच्छे से सुन लेना। इधर बैलेंस शीट हमको कब तक दिया 31 दिसंबर 2021, है कि नहीं। इससे हमको पता चल गया ये पार्टनरशिप फर्म फॉलो कर रहा है कैलेंडर ईयर बेसिस अकाउंट्स प्रिपेयर करने में। अभी 31 दिसंबर 2021 तक प्रिपेयर किया, नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब प्रिपेयर करेगा 2, यस और नो। तो 1 साल के बाद क्रिएट होगा, लेकिन बीच में ये कौन रिटायर हो रहा है, समझ गया। हम तो अभी पी एंड एल अकाउंट बोल के नहीं ले सकते मार्च में, समझ गया, बिकॉज पी एंड एल अकाउंट विल बी ड्राफ्टेड ओनली ऑन 31st December 2020. So this is a temporary account which is called P&L suspense account. I'm repeating once again, P&L suspense account is used only when there is a reconstitution in the partnership firm in between the financial year or in between the calendar year, whatever the partnership firm is following. Important note है, लिख देना, P&L suspense क्यों आया था इस सम में, because retirement is between the two different financial statements, समझ गया, retirement is between two different financial statements, that's why you have to open one temporary account which is called P&L suspense account. सर ये temporary account कहा जाएगा, this ultimately goes to P&L only, P&L डेबिट है ना, तो इतना अमाउंट पी एंड एल से ये ले लेगा बाद में, समझ गया। पी एंड एल सस्पेंस में कितना जा रहा है अभी 18000। सर सपोज इसी सम में वो बंदा रिटायर हो रहा है 31 दिसंबर 2022 में, पी एंड एल सस्पेंस आएगा क्या, नहीं आएगा, समझ गया। सेम एज्यूम इन द सेम सम इंस्टेड ऑफ ऑन 31 मार्च, क्वेश्चन में अगर दिया 31 दिसंबर 2022, then in that case P&L सस्पेंस नहीं आएगा, डायरेक्ट P&L अकाउंट आएगा, समझ गया। हाँ, दिस इज द रीजन, क्लियर। 18000 है, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटो, 18 डिवाइड बाय 6 कितना था, पर पार्ट कितना होगा 3000 आएगा, 3000 होने से 3 3 जार 9 होगा, इधर 3 2 जार 6000 होगा, 3 1 जार 3000 होगा, समझ गए। दिस इज द एंट्री, अंडरस्टूड। हाँ, P&L सस्पेंस क्यों यूज करा, हाँ, ये तो अभी P&L अकाउंट ड्राफ्ट करने का टाइम नहीं है, मतलब ओनली मार्च से एंड में करता है, बीच में हमेशा P&L अकाउंट खोलते नहीं है, समझ गए। तो P&L अकाउंट यूज ही नहीं करना चाहिए, समझ गए, इसलिए P&L सस्पेंस बोल के एक टेम्पोररी अकाउंट यूज करो। दिस इज जस्ट फॉर नेमिंग, आई मीन सस्पेंस बोल के है, हाँ, समझ गया, सिमिलर टू सब्सिडरी ऑफ P&L अकाउंट, यू कैन एज्यूम, ओके, हाँ, समझ गया। नेक्स्ट, कौन वाज टू बी पेड ऑफ इन फुल बोल रहा है, फुल कितना पेमेंट करना है, अभी कैपिटल अकाउंट ड्राफ्ट करना है तभी तो पता चलेगा, है कि नहीं, इसलिए तुरंत कैपिटल अकाउंट्स ले लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, कंपास, कौन,
सर्किल है, कंपास कोन सर्किल है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कितना था देखो, बैलेंस शीट में देख लेना ओपनिंग बैलेंस कितना था, 40,000, 60,000, 20,000। डेबिट क्रेडिट अच्छा से दे देना, हाँ ये सब मार्किंग होता है इसका, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज वगैरह, ठीक है। ये सब अच्छे से मेंटेन करना है, एग्जाम में अच्छे से ड्राफ्ट करना है। 40, 60, 20, सर ये क्या होगा, बैलेंस बाई बैलेंस ब्रेक डाउन होगा, है कि नहीं, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग कैपिटल बैलेंस इज ऑलवेज क्रेडिट, सो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लियर। नेक्स्ट तुरंत क्या होगा सर, फर्स्ट एंट्री देखो, रिजर्व्स को शेयर करना है बाय रिजर्व। सर कितना कितना शेयर किया, अमाउंट बताओ एंट्री देख के मुझे, 15,000, 10,000, 5,000, वेरी गुड। तुरंत क्या होगा, रिवैल्यूएशन हमने कर लिया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया था, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट देख के थर्ड एंट्री में बताओ कितना था, थर्ड या फोर्थ एंट्री सॉरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना प्रॉफिट आया था, 300 आया था, उसको बांट के बताओ, 150, 150, 100, 50 रुपीज, वेरी गुड। नेक्स्ट गुडविल एडजस्टमेंट है, उसका एंट्री समझ गए, हाँ इधर देखो किसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है, कौन का, तो बाई कंपास एंड सर्किल होगा इधर, बाई कंपास अकाउंट बाई सर्किल अकाउंट। ये कौन सा कैपिटल ना, कौन सा कैपिटल में क्रेडिट होने के समय हम ये लिखते हैं, बाई कंपास अकाउंट कितना था 2,400, बाई सर्किल कितना था 5,600, समझ गया। ये दो के नाम पे 8,000 इसको क्रेडिट मिल गया, अब ये डेबिट कर लेना टू कौन अकाउंट, टू कौन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कंपास में कितना डेबिट होना चाहिए 2,400, सर्किल में 5,600, समझ गया, क्लियर टिल नाउ। हाँ नेक्स्ट पी एंड एल सस्पेंस है बाई प्रॉफिट आया था ना, हाँ शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है देखो, बाई पी एंड एल सस्पेंस बोल के लिख सकते हैं, कितना था 9,000, 6,000, 3,000, ठीक है, समझ गया। और तो कुछ एंट्रीज नहीं है, सब हो गया, इधर तक सब हो गया ना। हाँ अभी पहले कौन का बैलेंस करो, कौन का कितना पेमेंट चाहिए बोलेगा मुझे, टू बैंक अकाउंट, मतलब उसको अभी तुरंत पैसा पेमेंट करना पड़ेगा ना। सर कैसे पता है आपको तुरंत पेमेंट करना है, क्वेश्चन में बोला है कि नहीं, कौन मस्ट बी पेड ऑफ इन फुल, तो पे कितना करेगा, इतना बैलेंसिंग फिगर इधर कितना आएगा बताओ मुझे, 70, 72, 500, 100 ना, वेरी गुड, 84,100 इतना पेमेंट करना पड़ेगा। सर तुरंत बैंक अकाउंट ओपन करो, सर क्यों ओपन कर रहा है बैंक अकाउंट, क्योंकि कितना बैलेंस बचा है देखना पड़ेगा ना। ओपनिंग बैलेंस कितना था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बोलो 40 ना, 40,000 बैलेंस शीट में 40,000 दिया था, है कि नहीं। अभी कितना पेमेंट करना है उसको, बाई कौन कैपिटल, कितना पेमेंट करना है 84,100, लेकिन उतना पैसा है ही नहीं, तो इसलिए वो बोला क्या था,
वो लोग कैश लेके आना पड़ेगा। तो कैश कैसे लेके आएगा? इन द रेशियो ऑफ क्लोजिंग कैपिटल 3:2 में होना चाहिए। तो क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए पहले अभी तक जितना कैपिटल है वो देखना पड़ेगा। अभी तक कितना कैपिटल है देखो, इधर कंपास का देखो, 40 माइनस 15, 40 प्लस 15 प्लस 150 प्लस 9000 कितना हुआ? 19, 28, 28 150 ना। हाँ सॉरी, कंपास का 28 नहीं, क्या बोल रहा हूँ, 55, 50, हाँ 64,150 माइनस 2,400। कैलकुलेटर यूज करो, इधर एग्जाम में हमको लेट होगा, हाँ? इसलिए बेटर है कैलकुलेटर यूज करने से फास्ट मिल जाएगा। 61,750, वेरी गुड ना। अभी सेम उसका भी देखो, सर्किल का भी देखो, 25, 28, 28, 50, 28, 23, 23, 550, सॉरी 22, 450, 22, 450, है कि नहीं? इधर बैंक अकाउंट देखो, ओपनिंग 40,000 था, पेमेंट किया 84,100 है, समझ गया? क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए? क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में बताया था, देखो मिनिमम 20,000 रखना चाहिए, है कि नहीं? तो ये क्लोजिंग हो जाएगा। तो मिनिमम 20,000 से न्यू पार्टनरशिप फॉर्म शुरू होगा, तो ये क्लोजिंग हो गया। तो हमको इधर इधर किधर आ गया, ये बैलेंसिंग फिगर नॉर्मली कैश ब्रॉट इन बाय पार्टनर्स होगा, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट आया था, है कि नहीं? टू पी एंड एल सस्पेंस बोल के है, मतलब टू प्रॉफिट बोल के लिखना है, प्रॉफिट 18,000, ये कैश बढ़ जाएगा ड्यू टू प्रॉफिट, है कि नहीं? पूरा है, हाँ समझ गया, देख लो ओपनिंग 40,000 है, कंपनी 31 दिसंबर से मतलब 1 जनवरी से काम मतलब बिजनेस किया था, बिजनेस करेगा तो ये 18,000 किस में दिखेगा? इनडायरेक्टली बैलेंस शीट में, कैश में ही ऐड होगा ना आके, मतलब इनडायरेक्टली क्या था, प्रॉफिट कैश बैलेंस बढ़ जाएगा इनडायरेक्टली, तो ये 40 18,000 ऐड हो गया। अभी जो बैलेंसिंग फिगर है वो टू कंपास एंड सर्किल कैपिटल अकाउंट्स, बैलेंसिंग फिगर जो भी है वो कंपास एंड सर्किल लेके आना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैश बैंक अकाउंट में प्रॉफिट कैसे बढ़ जाता है? प्रॉफिट तो बढ़ जाता है इनडायरेक्टली, है कि नहीं? प्रॉफिट कैसे दिख जाएगा हमको? हमको तो कैश बॉक्स में दिखेगा या बैंक अकाउंट में दिखेगा, वही प्रॉफिट ऐड होगा ना इसमें। पी एंड एल अकाउंट में तो हम फाइंड आउट करते हैं, लेकिन ये बैलेंस शीट में किस एसेट में छुपा हुआ है? तो बैंक अकाउंट में ही है इनडायरेक्टली, है कि नहीं? हाँ, तो इसलिए हम एज्यूम किया था 18,000 डायरेक्टली इधर बढ़ गया, तो बैलेंसिंग फिगर कितना था फाइंड आउट करो। फोर्टी, हाँ ये लेके आएगा, ये लेके आना पड़ेगा, तभी तो 84,100 पेमेंट कर सकता है, 84,100 पेमेंट करके 20,000 बचा सकता है, समझ गया? हमारे हाथ में 40,000 है, तीन मंथ का प्रॉफिट आया था 18,000, तो कैश बैंक अकाउंट में 58,000 है अभी तक, समझ गया? 58,000 से हम 84 नहीं पेमेंट कर सकते हैं, तो इसलिए ये बंदा 46,100 लेके आएगा, ये दोनों मिला के लेके आने के बाद 84,100 हम पेमेंट कर सकते हैं, 20,000 रख सकते हैं न्यू पार्टनरशिप फॉर्म, समझ गया? सो दिस इज द कंपास एंड सर्किल कंबाइंडली लेके आएगा। सर अलग अलग कितना लेके आएगा हमको पता नहीं, तो ये तो टोटल लेके आएगा,
ठीक है। अभी ये एग्जिस्टिंग कैपिटल है टिल नाउ कंपास का, ये तो सर्किल का एग्जिस्टिंग कैपिटल है। अभी ये ऐड होगा, ये भी समझ गया है कि नहीं? तो ये ऐड कर लो, कितना है बताओ मुझे। दिस इज एग्जिस्टिंग, समझ गया ना? दिस इज एग्जिस्टिंग कैपिटल्स, दिस इज न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस। टोटल कितना हुआ? 3300। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 3:2। तो कंपास का कितना होगा बताओ मुझे। 78,180। इसका सर्कल का डिवाइडेड बाय 5 × 3 किया था ना, अभी डिवाइडेड बाय 5 × 2, 52,120। दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल, है कि नहीं? सर ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, अभी तक इतना पैसा लेके आएगा बोल के मुझे बैंक अकाउंट से बताया, पता चला, है कि नहीं? ये जो लेके आ गया टोटल कैपिटल में मैंने इंक्लूड कर दिया, ये दोनों को मिला के, मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, मतलब न्यू फर्म, ठीक है, इतना टोटल है। तो ये मैंने बांट दिया 3:2 में, समझ गया? तब ये 2 आया था, इनडायरेक्टली ये ही क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए एग्जिस्टिंग फर्म में, समझ गया? तो 78,180 इधर ले लो, बाय 2 बैलेंस कैरी डाउन कितना था? 78,180, दूसरा 52,120। ये वर्किंग नोट इधर रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है? सोच लीजिए उधर जो वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट नंबर 3 या 4 जो भी है, इधर वर्किंग नोट रेफरेंस देना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है? अभी जो बैलेंसिंग फिगर एक बार देख लो, बैलेंसिंग फिगर एक बार देख लो, कैपिटल अकाउंट्स में बैलेंसिंग फिगर एक बार देख लो जल्दी। पहले कंपास का देख लो, कैलकुलेटर यूज करो जल्दी, कल से कैलकुलेटर लेके आना है। हाँ फास्ट। 60, नो 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 नो, कहाँ से बैलेंस दिख रहा है? इस डेबिट का टोटल कितना हुआ है? 65 है, 64,150 है, क्रेडिट ज्यादा है ना? अच्छा अच्छा, टोटल कर दिया क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, टोटल करके माइनस करके देखो, ये ऑलरेडी क्लोजिंग हो गया ना, तो तो अभी बैलेंस उस तरफ ही आएगा, देख लो कितना बैलेंस है माइनस। इस तरफ आएगा, कहा कैसे आएगा? बाई बैंक अकाउंट बोल के आना चाहिए। कितना था कंपास में, कितना आ रहा है? नहीं कंपास का बोलो पहले। वेरी गुड, 16,430, वेरी गुड। दिस इज द बैंक, बाय बैंक अकाउंट। अभी सर्कल का कितना आ रहा है? वेरी गुड, 29,670 बाय बैंक अकाउंट। अभी ये दोनों को मिला दो एक बार, 16,430 प्लस 29,670 कितना है देखो,
16,430 प्लस 29,670। हाँ इधर देखो, इधर देखो, इसलिए कंबाइंड 46,100 आ रहा है। इनडायरेक्टली इसको लेके ही मैंने क्लोजिंग कैपिटल्स कैलकुलेट किया, तो इनडायरेक्टली इसको लेके ही बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा अल्टीमेटली। समझ गया ना? ये लोग इतना कैपिटल लेके आएगा बैंक के रूप में, ठीक है, उसको पेमेंट हो जाएगा 84,100, ये दोनों क्या क्लोजिंग हो जाएगा, ये दोनों इनडायरेक्टली 3:2 रेशियो में हो जाएगा, है कि नहीं? सीधा हम कैपिटल्स में नहीं लिख सकते, ये एग्जैक्ट प्रोपोर्शन हम कैपिटल्स में नहीं ला सकते, क्योंकि हमको रेशियो एग्जैक्टली पता नहीं है। इसलिए पहले बैंक अकाउंट देखना है। समझ गया ना? पहले बैंक अकाउंट खोलो, 40 है हमारे पास, 18 आ गया जेब में, नया से टोटल इतना है अभी जेब में, पेमेंट इतना करना पड़ेगा, क्लोजिंग इतना रखना पड़ेगा, तो इतना पैसा लेके आएगा। ये किस रेशियो में लेके आएगा हमको पता नहीं, एग्जैक्टली कितना लेके आएगा कंपास सर्किल हमको अभी पता नहीं। तो 46,100 मैंने एग्जिस्टिंग कैपिटल जितना अभी तक है उसको ऐड किया, ये टोटल बन जाएगा न्यू फर्म को, उसको फिर बांट दिया, इसको लेके जाके मैंने क्लोजिंग में डाल दिया, तब इधर बैलेंसिंग फिगर देखेगा तो एग्जैक्टली वही जो अमाउंट है वो आ जाएगा। समझ गया? दिस इज द होल। वर्किंग नोट नंबर 1 है गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना, ठीक है, गेनिंग रेशियो हम फाइंड आउट किया है, वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 2 था ये बैंक अकाउंट है, वर्किंग नोट नंबर 3 ये, ठीक है, ये वर्किंग नोट नंबर 3 होगा। समझ गया? पार्टनर्स कैपिटल वो क्वेश्चन में पूछा है आंसर, आप पार्टनर्स कैपिटल ड्राफ्ट कीजिए बोल के, सो जर्नल एंट्रीज एंड कैपिटल अकाउंट जो भी है वो मेन आंसर होगा। समझ गया? कैसे आंसर को बाइफरकेट करना है, जो क्वेश्चन में पूछा वही मेन आंसर होगा, अदर देन जो क्वेश्चन में पूछा सब वर्किंग नोट्स होना चाहिए, ठीक है? क्लियर विद द सम? अभी क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाना, 14 till now we have seen sums on admission, yes or no? Only admission, only retirement. Now this sum includes admission retirement दोनों, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन पढ़ लो, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लेता हूँ। क्वेश्चन हमेशा समझना मेन चीज है, अगर क्वेश्चन अच्छा से समझ जाएगा यू कैन डू द प्रॉब्लम इन बिट्स, मतलब एक एक पार्ट सोच के हम क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। होगा होगा, पार्टनरशिप आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा, वो भी पूरा 14 मार्क्स होगा, बिल्कुल, ठीक है? हाँ नेक्स्ट। एक्स वाई जेड है, कितना था? इक्वल पार्टनर्स 1:1:1। हाँ 31 दिसंबर 2020, मतलब कैलेंडर ईयर बेसिस फॉलो हो रहा है, कैलेंडर ईयर इज 2021, ठीक है? हाँ नेक्स्ट। हाँ 1 लाख है, ठीक है? नेक्स्ट। हाँ करंट अकाउंट देख, कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट है, कौन सा मेथड यूज कर रहा है? कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन करने में 2 मेथड्स होते हैं, मैंने ऑलरेडी बोला है, याद है? क्या मेथड है ये? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। 2 मेथड्स होते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड? मैं एक बार रिफ्रेश करता हूं, देख लीजिए। फिक्स्ड कैपिटल्स मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स मेथड।
हाँ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स है कि नहीं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड्स में कैपिटल अकाउंट हमेशा फिक्स्ड रहेगा, जो भी एडजस्टमेंट है करंट अकाउंट्स में जाएगा, समझ गया। ओनली कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, न्यू कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, क्लोजिंग कैपिटल, बस इतना ही एडजस्टमेंट्स है कैपिटल अकाउंट में। जो भी बाकी एडजस्टमेंट्स है, एग्जांपल ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, गुडविल एडजस्टमेंट्स, कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट, सब करंट अकाउंट्स में जाएगा। दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट होगा, कैपिटल अकाउंट, सब एडजस्टमेंट्स उसमें ही है, समझ गया। ये मेथड क्या था, ये जो सम है, इस केस में ओनली कैपिटल अकाउंट रहेगा, इस केस में कैपिटल प्लस करंट दोनों रहेगा, समझ गया। तो इस क्वेश्चन में देखने से कैपिटल करंट दोनों है बैलेंस शीट में, तो इनडायरेक्टली दिस इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। बगल में लिख दो, पार्टनर्स करंट अकाउंट है ना, उसके नीचे एक एरो मार्क लिख के करंट अकाउंट से ऐसा कर लो, करंट अकाउंट्स ऐसा ऐसा एक एरो मार्क ले लो छोटा सा। हाँ, अभी लिख दो, सो बोल के लिख दो नीचे, सो फिक्स्ड कैपिटल्स मेथड, समझ गया, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। सर कैसे पता चला, करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट है मतलब इनडायरेक्टली कैपिटल इज हमेशा फिक्स्ड, समझ गया। जो ऊपर दिख रहा है एग्जैक्टली राउंड फिगर से देखो, 1 लाख टू 1 लाख 2 लाख, फिक्स्ड कैपिटल मतलब क्या, इसमें जो ओरिजिनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है वही रहेगा, इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स नहीं रहेगा, समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लैंड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, स्टॉक इन ट्रेड, सन्ड्री डेटर्स, बैंक बैलेंस विद बैंकर्स इज नथिंग बट बैंक बैलेंस, दीज आर द एसेट्स, सब दे दिया, ठीक है, इधर तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, हाँ हाँ, हाँ कब रिटायर हो रहा है, 1 जनवरी 2022, तुरंत। तो इस केस में देखना है क्या नहीं होगा एडजस्टमेंट, सस्पेंस अकाउंट मतलब वो क्या था, क्या चीज का एंट्री एडजस्टमेंट है, आराम से सोच लेना, सोच लेना। इस बीच में नॉर्मली क्या होता है, बिजनेस होता है, बीच में प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट टिल डेट कॉन्सेप्ट नहीं है इस क्वेश्चन में। हाँ वही है, एक दिन नेक्स्ट डे रिटायर हो रहा है, तो इस सब में मेन पॉइंट क्या था, प्रॉफिट टिल डेट एडजस्टमेंट नहीं है। P&L सस्पेंस हो, P&L अकाउंट हो, अलग बात है, समझ गया, समझ गया। अगर 31 दिसंबर 2022 में वो रिटायर हो रहा है, तब सीधा P&L अकाउंट में जाएगा, जो भी प्रॉफिट है P&L अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल बोल के हम लिख देते हैं, वो सेकेंडरी कॉन्सेप्ट है, लेकिन पहले प्रॉफिट है कि नहीं वो तो देखना पड़ेगा, समझ गया। तो इस सब में प्रॉफिट टिल डेट का एडजस्टमेंट है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इधर ऑलरेडी उन लोग को बांट दिया होगा। हाँ, ये बैलेंस शीट बनाने के समय ऑलरेडी कैपिटल्स को बांट दिया होगा, तो एडजस्टमेंट नहीं है। वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट, थ्री इयर्स परचेज, राउंड कर लो अच्छा से, 3 इयर्स परचेज, इसको राउंड करो ऐसा, 3 इयर्स परचेज ऑफ, हाँ हम्म, हाँ, पहले सब में गुडविल सीधा दे दिया कैलकुलेट करके, इस सब में गुडविल दिया नहीं है, हम कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर गुडविल कैसे आएगा वो बोल रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट। 3 इयर्स टोटल प्रॉफिट कितना था, ऐड करके बताओ मुझे, 1 लाख, 1 लाख 40, 1 लाख 20, 2 लाख 60, 3 लाख 60 होगा, 3 लाख 60 3 इयर्स का प्रॉफिट है। एवरेज 1 ईयर का प्रॉफिट कितना होगा, 1 लाख
20,000. 3,60,000 divided by 3, 1,20,000. 3 years purchase. सर व्हाट डू यू मीन बाय ईयर्स ऑफ परचेज? एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको नोट डाउन करना. नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, व्हाट इज दिस मीनिंग? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, number of years in future the firm can maintain the goodwill. समझ गया? ईयर्स ऑफ परचेज मतलब क्या था? ये जो अभी एज ऑन डेट, उस डेट अगर देखेगा, उस डेट जो गुडविल अर्न किया, उस गुडविल से नेक्स्ट 3 इयर्स तक, मतलब इनडायरेक्टली नेक्स्ट 3 इयर्स उसका गुडविल रहेगा, घटेगा नहीं. 3 इयर्स परचेज किया था. मैंने ऑलरेडी बोला लास्ट क्लास में मैंने ऑलरेडी बोला, सर गुडविल मतलब क्या था, गुडविल से फर्म को क्या बेनिफिट होगा. मैंने ऑलरेडी बोला, जो फर्म गुडविल है, सोच लीजिए आईटीसी का गुडविल है, सम अदर कंपनी जिसमें गुडविल नहीं है. 2 कंपनीज ले लीजिए. ये कंपनी अगर 1 लाख इन्वेस्ट करेगा, कंपनी इसको 20,000 रिटर्न आएगा बिकॉज ऑफ गुडविल. ये कंपनी अगर 1 लाख इन्वेस्ट करेगा, इसको 15,000 ही आएगा प्रॉफिट. समझ गया? सेम 1 लाख है, आईटीसी भी इन्वेस्ट कर रहा है, अदर कंपनी भी इन्वेस्ट कर रहा है. इसको 20,000 क्यों आ रहा है, इसको 15,000 क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ द गुडविल फैक्टर. द बैलेंस 5,000 इज गुडविल फैक्टर. समझ गया? दिस नंबर ऑफ इयर्स परचेज इज नथिंग बट गुडविल कैलकुलेशन के समय यूज करते हैं हम. मैंने क्या बोला, 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट कितना था? 1,20,000 ना. ये जो 1,20,000 है, समझ गया? दिस फर्म इज ऑलरेडी हैविंग गुडविल ना, तो दिस 1,20,000 इज इक्वल टू दिस 20,000, मतलब इसमें ऑलरेडी गुडविल है. ये प्रॉफिट दिस फर्म कैन मेंटेन फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स विदाउट एनी डाउट. दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ इयर्स परचेज. कॉन्सेप्ट समझ गया? नंबर ऑफ इयर्स परचेज इज दैट the firm can give you the commitment that it can maintain this super profit. I would say super profit. This is normal profit, this is super profit because it has goodwill factor. Understanding? Firm can maintain these super profits definitely in the next 3 years. That's why this is called number of years purchase. Understood? So now goodwill क्या होगा? Goodwill is equal to 1,20,000 into 3. This is 3,60,000 will be the goodwill. नंबर ऑफ years परचेज हमेशा प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करना है. तो गुडविल कितना आ गया? 3,60,000. अभी कौन रिटायर हो रहा है? एक्स का शेयर कितना होगा गुडविल का? इक्वल था, मतलब कितना होगा? 1,20,000. वेरी गुड. 1,20,000 किसको देना है? एक्स को देना है. वाई एंड जेड सैक्रिफाइस करेगा, सॉरी वाई एंड जेड गेनिंग पार्टनर्स होगा. हाँ, तो इनडायरेक्टली किस रेशियो में बांटेगा? सेम इक्वल रेशियो, क्योंकि बाद में भी इक्वल ही होगा. तो इक्वल होगा तो 1,20,000 किस रेशियो में बांटेगा? इक्वल में 60-60. बस. तो एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1,20,000, वाई एंड जेड डेबिट 60-60. समझ गया? वेरी सिंपल एडजस्टमेंट है. नेक्स्ट, हाँ, बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस कितना था देखो? 1,50,000 है. अभी जो एक्स का कैपिटल देखोगी 1 लाख है, करंट अकाउंट देखोगी 50,000 है.
तो 1,50,000 उधर ही हो गया। अभी और कुछ और गुडविल का भी शेयर देगा, गुडविल शेयर कितना था 1,20,000 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कैश है ही नहीं, इसलिए लोग क्या सोचा है, बैंक लोन ले लिया, कितना था 2 लाख का। प्लेजिंग क्या था, फिक्स्ड एसेट, प्लेज मतलब क्या, सिक्योरिटी दे दिया हमारा जो फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या है सर, बैलेंस शीट में देखो, लैंड, फिक्स्ड फील्ड, प्रॉपर्टी, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, सब सब दे दिया प्लेज में, तो 2 लाख लोन ले लिए, ठीक है ना। पहला सब में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैश लेके आया था, इस सब में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैश लेके नहीं आया, लोन ले लिया ये लोग, समझ गया, डिफरेंस समझना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्यू, हम्म, हाँ इधर देखो, ऑलरेडी फर्म में एक मैनेजर है जिसको हम पहले शायद सैलरी दे रहा होगा, उसको एम्प्लॉय किया क्यू को, वो बिजनेस में उसको सैलरी दे रहा होगा, क्योंकि मैनेजर बोला है, लॉयल मैनेजर, लॉयल मतलब हुम कैन बी ट्रस्टेड, समझ गया। अभी तो 2 पार्टनर हो जाएगा, ये तो लॉयल बंदा है, क्या करेंगे, इसको पार्टनर जैसा एडमिट कर लेंगे, समझ गया। तो न्यू पार्टनर्स क्या कौन कौन होगा, हाँ एक्स वाई जेड था पहले, एक्स निकल गया, अभी वाई जेड क्यू है, समझ गया। हाँ नेक्स्ट, हम्म, ये बोल रहा है कैपिटल के अलावा गुडविल भी लेके आना पड़ेगा, वो गुडविल भी कैसे लेके आना पड़ेगा, कैश में, तो इनडायरेक्टली कैश में 1 लाख प्लस गुडविल लेके आना पड़ेगा। सर उसका गुडविल कितना होगा, टोटल गुडविल हमने फाइंड आउट कर दिया, कितना था 3,60,000, अभी क्यू का गुडविल कितना होगा, उसका उसको पार्टनर मतलब रेशियो देखने से पता चलेगा, अभी रेशियो कितना था, नेक्स्ट लाइन देखो, क्यू 1/3 क्यू का है, तो इनडायरेक्टली एक्स वाई वाई जेड को कैसे होगा, वन ही होगा, 1/3 होगा, तो इनडायरेक्टली वाई जेड क्यू का भी 1:1:1 रेशियो है, सिंपल सम, समझ गया। तो अभी क्यू का गुडविल कितना होगा बोलो, 1,20,000 सेम, तो 1,20,000 क्यू अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्यू लाना पड़ेगा, हाँ किसको क्रेडिट मिलेगा, वाई को, वाई एंड जेड को मिलेगा, तो टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट, 60,000, सिंपल है। हाँ नेक्स्ट, हम्म, हम्म, हाँ ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी जो दिया था वो बैलेंस शीट 31 दिसंबर का ही है, ओपनिंग बैलेंस शीट का प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं, डायरेक्टली डिफरेंस क्या था, सिर्फ रिटायरमेंट एंड एडमिशन को हम कंसिडर करना पड़ेगा, समझ गया। हम्म, मैं सम करूं इसमें, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तो बड़ा कैपिटल अकाउंट से एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि 4 होगा ना, बिकॉज दिस सम इज इंक्लूडिंग एडमिशन अंडर रिटायरमेंट, है कि नहीं, एक्स वाई जेड क्यू, एक्स वाई जेड क्यू, ये तो कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। सेम फिर करंट अकाउंट्स होगा,
partners current accounts. This is fixed capital method. That's why you have to maintain two different accounts for the capitals, huh? X, Y, Z, Q. X, Y, Z, Q. ठीक है, कैपिटल अकाउंट्स ओपनिंग बैलेंस बताओ. 1 लाख, 1 लाख, 2 lakhs. Z का ओपनिंग है ही नहीं. Q का बैलेंस नहीं है, वही है. दिस इज नथिंग बट बैलेंस ब्रॉट डाउन है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन. ठीक है, नेक्स्ट करंट अकाउंट्स में भी डाल दो. करंट अकाउंट्स किस किस का है? 50,000, 75,000. नेक्स्ट, मैंने सिर्फ ओपनिंग बैलेंस ले लिया अभी तक. ठीक है, अभी देखो बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व्स है क्या? बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व्स है क्या? रिजर्व्स, हाँ, रिजर्व्स नहीं है तो रिजर्व्स का एडजस्टमेंट नहीं है. ठीक है, रिजर्व्स होने से क्या करना है सर? एग्जिस्टिंग क्या पार्टनर्स को बांटना पड़ेगा. क्लियर? हाँ, रिजर्व्स नहीं है. एसेट्स में देखो गुडविल है क्या? नहीं है. एसेट्स में नहीं है तो एग्जिस्टिंग बुक्स में नहीं है, तो अभी फ्रेशली गुडविल का एडजस्टमेंट देना पड़ेगा. हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया ना गुडविल का, तो पहले एडजस्टमेंट देखो गुडविल का. सर गुडविल का एडजस्टमेंट किस अकाउंट में देगा? कैपिटल में, करंट में? करंट में देना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड. कैपिटल हिलना नहीं चाहिए. ठीक है, हाँ. अभी फर्स्ट है, एक्स को जाना चाहिए पेमेंट, है कि नहीं? एक्स को, इधर देखो, एक्स को जाना चाहिए. ये बैलेंस ब्रॉट डाउन एंट्री है. इधर बाई वाई अकाउंट, बाई जेड अकाउंट कितना था? 60,000, 60,000. समझ गया? एक्स को 1,20,000 क्रेडिट मिलना चाहिए. डेबिट किसको जाएगा? टू एक्स अकाउंट. टू एक्स अकाउंट. एक्स में नील, वाई में 60,000 डेबिट होगा, जेड में 60,000 डेबिट होगा. ये एंट्री ठीक है? समझ गया? अभी नेक्स्ट है बाई बैंक. सर बाई बैंक मतलब क्यों कैपिटल अकाउंट में क्यों गया आपने? बिकॉज जो क्यू कैपिटल कैपिटल लेके आएगा, है कि नहीं? ये देखो, हम बैलेंस शीट हो गया, फर्स्ट लाइन हो गया, बैलेंस शीट हो गया, एक्स रिटायर हो रहा बोल दिया, हमने गुडविल कैलकुलेट कर दिया 3,60,000, गुडविल का एडजस्टमेंट दे दिया. नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू मीट इज ऑब्लिगेशन बैंक लोन वाज अरेंज्ड. इस अकाउंट में जाएंगे अभी, बैंक अकाउंट. ठीक है, बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है बताओ? 1,50,000. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा ये. समझ गया? टू बैंक लोन कितना था? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ये एंट्री होगा. बैंक लोन लायबिलिटी है तो ये बैलेंस शीट में जाएगा.
ठीक है, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा 2 लाख, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या, फर्दर टू कॉम्पनसेट ए लॉयल मैनेजर क्यू इट वॉज एग्रीड बिटवीन वाई जेड एंड क्यू दैट क्यू शुड बी एडमिटेड एज ए पार्टनर। ये 1 लाख कैश में लेके आएगा, तो इसलिए इधर जाओ, बाई बैंक जेड कितना लेके आ रहा है, सॉरी क्यू 1 लाख, समझ गया। कैपिटल अकाउंट्स में मैंने डाल दिया, दिस इज कॉल्ड बाई कैश और बैंक अकाउंट, मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल, समझ गया। अभी नेक्स्ट, गुडविल भी लाना पड़ेगा, क्या बोला, गुडविल भी लाना पड़ेगा। तो गुडविल कितना लेके आएगा, करंट अकाउंट का है इधर 1,20,000, तो 1,20,000 किस किस को क्रेडिट मिलेगा, बाई क्यू, ठीक है, बाई क्यू वाई एंड जेड को मिलेगा, है कि नहीं। क्यू करंट अकाउंट, इधर देखो 2 क्यू में है ना, इधर बाई क्यू ना, वाई एंड जेड को क्रेडिट हुआ है बाई क्यू, इधर 2 नहीं, 2 क्यू नहीं, 2 वाई अकाउंट होगा, 2 वाई होगा, 2 जेड अकाउंट होगा, 2 वाई में कितना होगा 60,000 होगा, जेड में कितना होगा 60,000 होगा, ठीक है। अभी इधर बाई कैश और बैंक अकाउंट है, सर ये क्या था, क्यू 1,20,000 गुडविल एडिशनल लाना पड़ेगा ना, समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, अभी इधर बैंक अकाउंट में भी जाओ, बैंक लोन आ गया, टू क्यू कैपिटल है, कैपिटल कितना लाया था 1 लाख, टू क्यूज करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में क्यों क्या लाके आएगा सर, गुडविल, समझ गया, अंडरस्टूड। कैपिटल में करंट में मैंने दे दिया इधर, क्लियर, समझ गए। 1,20,000 लेके आ गया, ये लोग दो, ये तुरंत इनसे ले लिया, ये 1,20,000 लेके आ गया, उन लोग से तुरंत ले लिया 1,20,000, सर कैसे है, बांट दिए ये लोग, ऐसा, समझ गए। हाँ, अभी एक्स को भेजना पड़ेगा, है कि नहीं, एक्स को भेजना पड़ेगा, तो एक्स में, एक्स का अकाउंट देखो, करंट अकाउंट पहले बैलेंस करो, बैलेंस जो भी है कैपिटल में टेल दो, कैपिटल से टोटल पेमेंट कर लो जो भी है, समझ गए। हाँ, अभी एक्स में देखो कितना हुआ, कितना, हाँ तो 1,70,000 क्लोज करो, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, समझ गए, एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट बैलेंस 0 हो जाएगा, कैपिटल में चले जाएगा, कितना था 1,70,000 इज बैलेंसिंग फिगर, नीचे लिख दो बी बाई एफ, ठीक है। अभी ये 1,70,000 लेके आ जाओ, कहाँ पे लेके आ जाओगी, इधर कैपिटल्स में, है कि नहीं, बाई एक्स करंट अकाउंट,
कितना था 1,70,000। अभी इसका टोटल कितना हुआ था 2,70,000 है कि नहीं। 1,00,000 ओरिजिनल है, अभी करंट अकाउंट के रूप में 1,70,000 और पेमेंट करना है, टोटल 2,70,000 होगा। ये 2,70,000 कैसे पेमेंट करेंगे सर, बैंक अकाउंट से, टू बैंक अकाउंट, समझ गया, तुरंत बैंक अकाउंट में भी डाल देना बाय एक्सेस कैपिटल अकाउंट। पेमेंट हमेशा कैपिटल से ही होगा। करंट अकाउंट को बैलेंस टेल देंगे हम पहले करंट कैपिटल अकाउंट में, तब पेमेंट होगा। कितना था 2,70,000, ठीक है। समझ, हाँ अभी वही का देख लेना, करंट अकाउंट देख लेंगे ना, वही का करंट अकाउंट देखो, ये कहाँ गया, सेवेंटी फाइव 60 1,35,000 है, ठीक है। बैलेंस कितना होगा 70, हाँ टू बैलेंस कैरी डाउन है, कितना था 75,000 वाई का है, जेड का कितना होगा 25,000 है, 60 काटने से 25 बचेगा, ठीक है। सर क्यू का कुछ है क्या, 1,20,000 जीरो है कि नहीं। 1,20,000 जो कैश में लेके आ गया गुडविल के रूप में, ये लोग बांट दिए तुरंत, तो क्यू का करंट अकाउंट बैलेंस कुछ नहीं है, तो जीरो हो जाएगा, समझ गया। हाँ कैपिटल अकाउंट्स भी कर लो, कैपिटल अकाउंट्स भी कर लो क्लोजिंग। 1,00,000 टू बैलेंस कैरी डाउन, 1,00,000 2 lakhs 1,00,000 है कि नहीं। दिस इज बैलेंसिंग फिगर, बी बाई एफ लिख देना हर एक कॉलम में, ठीक है। बी बाई एफ का भी मार्किंग होगा हाफ मार्क, ये बी बाई एफ कौन सा बैलेंसिंग फिगर है, क्वेश्चन में आंसर में दिखाना पड़ेगा अच्छे से। ये तो कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंसिंग फिगर, समझ गया। सब एडजस्टमेंट्स हम कर लिया, अभी बैलेंस शीट देख लेना। कैपिटल अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट्स हो गया। क्वेश्चन में जो पूछा एक बार देखो क्या क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहे हैं। कैपिटल अकाउंट्स हो गया, बैलेंस कर दिया, हाँ करंट अकाउंट्स भी कर दिया। नेक्स्ट, हाँ ओपनिंग बैलेंस शीट देख लेना। बैलेंस शीट मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट लिख सकते हैं एज ऑन फर्स्ट 2022 ना, 2021 है क्या, नहीं 31 दिसंबर 2021 है, हाँ 1 जनवरी 2022 होगा ना। ये लाइबिलिटीज होगा रुपीस, एसेट्स होगा रुपीस, ठीक है। लैंड एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, इसको तो हम हिलाया नहीं है, कितना तो 1,00,000 होगा। प्लांट एंड मशीनरी, इसको तो हम हिला ही नहीं है, 2,00,000 होगा। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, इसको हम हिला ही नहीं है, 50,000 होगा, है कि नहीं। स्टॉक, इसको भी कुछ है हुआ नहीं है, 1,00,000 होगा। सन्ड्री डेटार्स, इसको भी हम कुछ नहीं किया, अगर इसी सब में रिवैल्यूएशन भी डाल देगा तब रिवैल्यूएशन का भी करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट्स नहीं है कि नहीं। सेकंड, प्रॉफिट टिल डेट नहीं है, गुडविल एक एडजस्टमेंट है, रिजर्व्स नहीं है, समझ गया। हाँ 2 पेज और हो जाता है, रिजर्व्स भी नहीं है, और एक और चीज भी नहीं था, क्या था, क्लोजिंग कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए,
वो एडजस्टमेंट भी नहीं है। अगर वो एडजस्टमेंट होता और बढ़ जाता। क्लोजिंग कैपिटल्स देखना पड़ेगा, उधर कैपिटल करंट दोनों मिलाना पड़ेगा, मिला के रेशियो क्या होगा देखना पड़ेगा। मतलब इस क्वेश्चन में अगर वो एडजस्टमेंट भी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तब ये जो बैंक लोन पॉइंट है ना बैंक लोन 2 लाख वो निकाल के ये डाल देगा। तो एग्जाम जो पेपर सेटर है हमेशा यही करेगा नौटंकी। ठीक है, किस पॉइंट में क्या एडजस्ट करना है। तो ये सब कॉन्सेप्ट याद क्लियर रहेगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी बैंक बैलेंस विद बैंकर्स। बैंक अकाउंट बैलेंस देखो कितना बचा है, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना था देखो इसमें 1,50,000, 2 लाख, 1,20,000, 1 लाख, 2,70,000 पेमेंट हो गया। क्लोजिंग कितना होगा टोटल कर लो जल्दी। ये तो सिंपल है, डायरेक्टली चेक कर लो। ये तो सिंपल है, डायरेक्टली चेक कर लो। 3 ना 450 क्या 2 लाख है बैलेंस, 2 लाख कैसे होगा। 350, 450, 570, 3 लाख ना। हाँ ये बैलेंसिंग फिगर है, ये 3 लाख आएगा इसमें, है कि नहीं। बैंक बैलेंस कितना था, नहीं 3 लाख, क्लोजिंग में 3 आएगा ना। ठीक है, अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स कितना था बोलो, बैलेंस बोलो। एक्स वाई सॉरी वाई जेड क्यू कितना था 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख, है कि नहीं। करंट अकाउंट्स बोलो, वाई और जेड का ही होगा, क्यू का नहीं है। कितना कितना था 75K, 25K। और बैलेंस शीट में क्या क्या था, सन्ड्री क्रेडिटर्स इसको हमने हिलाया नहीं है तो 1.5 लाख होगा। एडिशनली बैंक लोन आएगा, है कि नहीं, क्योंकि ड्यूरिंग देयर हमने लोन ले लिया 2 लाख का। बैलेंस शीट देखो टैली होगा। टैलीड, वेरी गुड, सम हो गया। मैंने ऐसे शॉर्टकट्स लिखा है, एग्जाम में शॉर्टकट्स नहीं लिखना है। ये अंदर एक और कॉलम में लेके टोटल कैपिटल बाहर ले सकता है। ठीक है, वो भी कर सकते हैं, देख लीजिए है जो एक क्वेश्चन में दिया था। प्रेजेंटेशन जितना अच्छा से दे पाएंगे वही अडॉप्ट करने से बेटर है। मैं एक्चुअली बोर्ड के लिए ऐसे ले रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में प्रेजेंटेशन मेन पॉइंट है। ठीक है, एग्जामिनर कन्विंस मतलब जो वैल्यू करेगा, जो आंसर शीट है वो खुश हो जाएगा, आप लोग खुश हो जाएगा। ठीक है ना, उसको थोड़ा क्लमजी क्लमजी जैसे दिखा देगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, मार्क्स कम कर देगा। ठीक है, इसलिए हमेशा प्रेजेंटेशन मेन पॉइंट है। हम लास्ट क्लास में एक प्रेजेंटेशन क्लास लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट रिटायरमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट्स इसका जेएलपी का एक एडजस्टमेंट मैंने बताया नहीं, वो एक सेपरेट चैप्टर है, उसमें मैं क्लियरली बता दूंगा। ठीक है, बाकी सब एडजस्टमेंट्स मैंने कवर कर दिया, कैपिटल अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स केस भी मैंने इस सब में बता दिया। ठीक है,
दिस इज ऑल अबाउट रिटायरमेंट. रिटायरमेंट में क्या क्या एडजस्टमेंट्स होगा, एक बार पेज नंबर 291 में आ जाओ, आप भी कन्विंस हो जाएगा. 291 में आ जाओ. आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द अदर पार्टनर्स में कंटिन्यू द बिजनेस. ठीक है. फॉर रिपेइंग द रिटायरिंग पार्टनर सम स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स आर टू बी रिक्वायर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म. दीज आर डिस्कस्ड एज फॉलोज. कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो कर दिया. रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो भी रिजर्व्स होने से हम करना है. सिमिलरली लॉस भी होगा तभी बांटना पड़ेगा. रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज कर दिया. एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कर दिया. जेएलपी हमने किया नहीं, ये मैं बता दूंगा, सेपरेट चैप्टर है उसमें हम कर दे. सेटलमेंट ऑफ फाइनल बैलेंस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, ये दोनों सम में हमने कर दिया ना. एक सम में पार्टनर्स लेके आ रहा है कैश, दूसरा सम में बैंक लोन लेके आया था रिटायरमेंट के लिए. समझ गया ना. पेमेंट करने के लिए मोड्स क्या क्या होगा वो वाला बोल रहा है. सेटलमेंट फाइनल बैलेंस. ठीक है. एडजस्टमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. एडजस्ट क्यों करना है, क्योंकि क्लोजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल्स होना है. दिस इज कैपिटल एडजस्टमेंट, लास्ट वाला. समझ गया ना. क्लोजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल्स होना चाहिए. ये वाला हम देखा था ना इसमें. हाँ ये वाला कैपिटल एडजस्टमेंट. सो एडजस्टमेंट्स कॉन्सेप्ट अगर पता चल गया, सम इज वेरी इजी. सिंपली उसका जो करस्पॉन्डिंग क्रेडिट डेबिट कैपिटल अकाउंट्स में दे दो, काम खत्म. समझ गया. तो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन क्या क्या एडजस्टमेंट्स है. मेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट रिजर्व्स. समझ गया. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स पी एंड एल. ये एडजस्टमेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हर एक सम में. सेकंड, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. थर्ड, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. एडजस्टमेंट ऑफ क्या था, हाँ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. एडजस्टमेंट ऑफ जेएलपी. जेएलपी हमने नहीं किया, टू बी डिस्कस्ड ये. ठीक है. नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है. प्लस गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ठीक है. सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब आएगा, एडमिशन में होगा. गेनिंग रेशियो कब आएगा, रिटायरमेंट में आएगा. सैक्रिफाइसिंग रेशियो एडमिशन में आ गया. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, ये तो एक एडजस्टमेंट हो गया. नेक्स्ट कैपिटल एडजस्टमेंट्स है. कैपिटल एडजस्टमेंट्स ब्रैकेट में लिख दो क्लोजिंग कैपिटल. ये सिमेट्रिक सिंबल दे दो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. क्लोजिंग कैपिटल ये सिमेट्रिक सिंबल है, ये पता है ना. सिमेट्रिक सिंबल ऐसा सिमेट्रिक सिंबल, इसका मतलब क्या था, क्लोजिंग कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए. क्लोजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दिस इज कॉल्ड कैपिटल एडजस्टमेंट्स. क्लियर. सेवेंथ क्या होगा, सिर्फ रिटायरमेंट में होगा. सेटलमेंट ऑफ बैलेंस टू रिटायरिंग पार्टनर. ठीक है. these are all these are all till these are all common for admission.
This last additional point is only for retirement of a partner. Understood? These all adjustments are very important. ठीक है, सेम एडमिशन में भी है. एडमिशन में एक बार जाओ, फर्स्ट पेज में सेम आपको दिख जाएगा उधर भी. 271 पेज नंबर. Calculation of new profit sharing ratio, revaluation of assets and liabilities, declaration of reserves, वो distribution, adjustment for goodwill, adjustments for capital contribution, ये वाला लास्ट वाला, adjustment for life policy JLP. उसको भी टिक कर लो एक बार, पेन से टिक कर लो. ठीक था ना? कंफर्म, सेटिस्फाइड. ये वो हम 1 पॉइंट, ये एडमिशन हो गया अभी, ये हो गया, ये हो गया. ये एक छोटा कॉन्सेप्ट है, 10 मिनट में हो जाएगा, मैं अभी कवर कर लेता हूँ. ठीक है, एलएलपी. एलएलपी मतलब क्या था? पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में एक डिसएडवांटेज है, क्या था? अनलिमिटेड लाइबिलिटी है कि नहीं? अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, है कि नहीं? जो भी अगर पार्टनरशिप लॉसेस में गया, सोल प्रोप्राइटर लॉसेस में गया, अगर लॉसेस में गया तो जो लॉस सोल प्रोप्राइटर पॉकेट से देना पड़ेगा, है कि नहीं? लॉस है, 3 साल कंटिन्यूस लॉस है, 3 साल कंटिन्यूस. फर्म हैज एंडेड अप इन कंटिन्यूस लॉसेस, पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटर फर्म. व्हाट हैपेंस? एसेट्स गेट अब्सॉर्ब्ड इनडायरेक्टली, लायबिलिटी स्टे एज इट इज. एसेट्स गेट अब्सॉर्ब्ड, लॉस कहाँ से होगा? एसेट्स कम हो जाएगा, है कि नहीं? Those loss has to be, suppose on that particular date you are dissolving the firm, तो assets कम है, liabilities ज़्यादा है, तो पॉकेट से देना पड़ेगा. समझ गए? दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी. तो पर्सनल एसेट्स, पर्सनल प्रॉपर्टी सब जाएगा. अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ दिस, because of this concept of unlimited liability in the partnership or firm, they came up with a new system which is called LLP, limited liability partnership. सिर्फ उसको नेगेट करेगा इस फॉर्म में, बाकी सब पार्टनरशिप का फीचर सेम रहेगा. समझ गया? रेस्ट ऑल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट. Understood? Only liability feature gets modified in LLP form. Understood? Rest all are same. You can see in the book. We have only one sum in LLP. Just open the sum. This is a very easy sum. You can just do on your own also. I'll explain how it is. LLP. Page number 406. Limited liability partnership. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, statement of assets and liabilities. Understood? This is similar to P&L account, this is similar to balance sheet, but this is LLP na, limited liability partnership. This is almost equal to a company now, because limited liability, yes or no? Limited liability is in the case of company, so almost company. So what is the difference here? P&L account हम ऐसा ड्राफ्ट करते हैं, क्रेडिट डेबिट. समझ गए? अभी कंपनी का फॉर्मेट अलग है, शेड्यूल 3 के हिसाब से क्या होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमेशा ऐसा होगा, पहले एक्सपेंडिचर, पहले इनकम होगा, नेक्स्ट एक्सपेंडिचर होगा,
समझ गया? ये तो हॉरिजॉन्टल है, ये तो वर्टिकल है, बस बाकी सब सेम। समझ गया? इनकम माइनस इनकम को ए में ले लेते हैं, एक्सपेंडिचर बी में ले लेते हैं, प्रॉफिट क्या होगा, ए माइनस बी होगा, इसी फॉर्मेट में रहेगा। अंडरस्टूड? सेम एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होगा, इधर हमने डेबिट क्रेडिट नहीं, सॉरी, लायबिलिटीज एसेट्स होगा ना बैलेंस शीट। इस केस में कैसे होगा, पहले लायबिलिटीज होगा, नेक्स्ट एसेट्स होगा। इसका टोटल कितना आएगा, इसका टोटल कितना आएगा, दोनों मैच होगा। दिस इज हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, दिस इज वर्टिकल फॉर्मेट। एक बार मैं फॉर्मेट बता देता हूं, एक बार देख लीजिए, पेज नंबर 408 में आना, आया था 408 में, देखो कंट्रीब्यूशंस एंड लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज है ये सब। समझ गया? लायबिलिटीज सेट में जनरली क्या आता है, कैपिटल्स आता है, तो पार्टनर्स फंड, देखो कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, रिजर्व्स एंड सरप्लस, है कि नहीं? नेक्स्ट क्या था, लायबिलिटीज, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन वगैरह, सन्ड्री क्रेडिटर्स अगर कुछ होगा, बिल्स पेएबल कुछ होगा वो सब, प्रोविजंस कुछ होगा वो सब। एसेट्स देखो, ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स, मतलब फिक्स्ड एसेट्स सब होगा, नीचे करंट एसेट्स है, कैश एंड बैंक बैलेंस है, बस यही तो है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखो, पहले इनकम होगा, नेक्स्ट एक्सपेंसेस होगा सब। समझ गया? एक इसका सम है 46, सम नंबर पेज नंबर 411 में आ जाओ, 46 है। ये जो ट्रायल बैलेंस दिया था, इसको इस फॉर्मेट में बिठा देना है बस। समझ गया क्या बोल रहे हैं? आपको अगर ये पी एंड एल अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऐसे ड्राफ्ट करना अगर आ गया, इसको सीधा डेबिट वाला पहले ले लो, मतलब क्रेडिट वाला पहले ले लो, इनकम वाला इधर ले लो, ये दोनों माइनस करो, सेम। अंडरस्टैंडिंग? सेम इधर भी, लायबिलिटीज इस तरफ है, एसेट्स इस तरफ है, तो स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में पहले लायबिलिटीज ले लो, ये जो लायबिलिटीज है इधर ले लो, एसेट्स जो है इधर ले लो। समझ गया? जस्ट चेंज इन द ओरिएंटेशन, हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल, रेस्ट ऑल इज सेम। क्लियर? Just I wanted to cover this LLP also in just 10 minutes because this is a very small concept. Okay, you can do this sum if you have any doubts. I mean, just see this sum, where all the items are going. In this sum you have the adjustments also, additional information भी है। क्वेश्चन नंबर 412 में देखो, पेज नंबर 412, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, ये एडजस्टमेंट्स है, जैसे हम चैप्टर 3 में देखा है कि नहीं? चैप्टर 3 में आउटस्टैंडिंग कितना था, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना, वो सब एडजस्टमेंट्स में देता है ना। वो जो ट्रायल बैलेंस में नहीं है वो डबल एंट्री में आएगा, मतलब दोनों करना पड़ेगा डबल एंट्री। ये एडजस्टमेंट जो है वो हम चैप्टर 3 में भी डिस्कस किया है, सेम वही है। एडजस्टमेंट्स अगर कंसिडर करके कौन सा आइटम पी&एल में जाएगा, कौन सा आइटम पी&एल मतलब स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कौन सा आइटम एसेट्स एंड लायबिलिटीज में जाएगा, एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये सम होमवर्क में ले लीजिए, कर लीजिए, और बाकी सम्स रिटायरमेंट में भी होमवर्क में ले लीजिए, रिटायरमेंट का। ठीक है, रिटायरमेंट का जो भी सम्स, या एडमिशन का भी कर सकते हैं आप लोग। हाँ हाँ हाँ, कर लीजिए अच्छे से, अगर जो भी डाउट होगा मुझे पूछ सकते हैं, मैं क्लैरिफाई कर लूंगा। ठीक है, अभी हम एलएलपी का भी कवर कर लिया था। ठीक है, अभी ये जो बाकी बचा था हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। क्लियर? एनी डाउट्स? इस ये इधर तक जो भी है सब, वो जो मैंने 7 एडजस्टमेंट्स बोला कॉमन होगा, तो इसलिए 7 एडजस्टमेंट्स कॉन्सेप्चुअली अगर पता चलेगा, ये 3 मॉड्यूल से जो भी आएगा सम 14 मार्क्स, वेरी इजी। ठीक है, बट यू शुड लर्न देम कॉन्सेप्चुअली, ये 3। ठीक है, क्लियर? 1 2 3 done. We will see rest of them in the next class. Okay, thank you.
ठीक है ठीक है। अभी इधर भी था, हम लोग ये 2 स्टैंडर्ड कवर कर लिए ना, अभी और 4 है। ये 4 कवर करेगा, ये 20 मार्क्स भी खत्म हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा ये, ठीक है ना। इसमें मैं बताता हूँ, ये 3 चैप्टर्स वेरी इजी है, ये भी देखेगा तो वेरी इजी है, ये भी वेरी इजी है। थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, पार्टनरशिप अकाउंटिंग कॉन्सेप्चुअली अगर पता चलेगा, वेरी इजी चैप्टर है ये। पार्टनरशिप वेरी इजी है, कर सकते हैं। 14 मार्क्स डायरेक्ट सम, श्योर शॉट सम कंफर्म आएगा एग्जाम में। हाँ हाँ हाँ, नहीं ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है ना, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है। ये तो थोड़ा डबल एंट्री है मोर और लेस। चैप्टर 3 इज, आई मीन कंपेयरिंग ऑल द चैप्टर्स, आई वुड प्रिफर चैप्टर 3 इज वेरी वेरी इजी चैप्टर। मेरे हिसाब से चैप्टर 3 इज वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्चुअली अगर देखेगा तो, सिर्फ डबल एंट्री कॉन्सेप्ट इधर। इधर हाँ, इधर थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा। हाँ डायरेक्टली रहता ही है, इधर थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से, लेकिन मैक्सिमम इधर से नहीं दे सकते, ये दोनों में दे सकते हैं, लेकिन इधर भी देगा, लेकिन इजी है। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर्स ज़्यादा है, एक से एक पकड़ के, एक से एक पकड़ के, एक से एक। हाँ, अब एक सम किया था हमने, देखा है, तो लास्ट ईयर प्रॉफिट 25% ज़्यादा है, तो प्रॉफिट से लेके हम प्रॉफिट फाइंड आउट किया, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक को इनडायरेक्टली दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक लेके सीओजीएस निकाल के, एक 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 क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस, कैश परचेजेस, क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स, कैश अकाउंट ड्राफ्ट करो, फिर उधर से निकाल दो बीआरएस, डबल कॉलम कैश बुक। तो एक से एक पकड़ के चेन पकड़ना वो मुश्किल है, समझ गए। सो इधर थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, लेकिन सबसे ये इजी है, ठीक है। ये श्योर शॉट मतलब 14 मार्क्स सीधा सम में, तो इसलिए इसमें तो दोनों जोड़ के 14 मार्क्स हो सकते हैं, लेकिन इधर सीधा होगा, ठीक है। तो अकाउंट्स इज वेरी इजी सब्जेक्ट, आई मीन स्कोरिंग सब्जेक्ट है, थोड़ा अच्छा से देखने से, ठीक है।